Hey everyone, this is Anshu Sinha and welcome to my channel. And today I'm going to talk about a very important topic. And finally, the Bihar government has taken a major step towards the assistant professor vacancies. So I think you have been waiting for these kind of vacancies in Bihar universities. So आज का जो update है ना, it is extremely important. So on 1st July 2026, the Bihar Secretariat Bihar Lok Bhavan has issued a kind of a notification which was numbered as 09 2026 1394. At first glance it may look like just another government notification, but in reality this document lays the foundation for all the assistant professor recruitments in Bihar. So it's 15 pages in total, and everything has been mentioned. It is a kind of a guidebook, like अगर ये exams होंगे assistant professor की vacancies के लिए, so every details had been mentioned in this document, right from the eligibility criteria to the selection criteria to the age relaxation, the kind of an exam pattern, everything has been mentioned. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे और भी डिटेल्स है, बट मैं फिलहाल आई एम जस्ट फोकसिंग ओनली ऑन द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ड्राफ्ट. तो ये जो एलिजिबिलिटी को हम एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. सो नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो दिस क्राइटेरिया, बिकॉज no matter how well you prepare, so if you don't meet the eligibility criteria, you cannot apply. So the basic educational qualifications, say, let's start with, to apply for this AP in Bihar universities, the first requirement is that a master's degree in the relevant subject. Okay, so from any recognized Indian university or an equivalent foreign university, कितने परसेंट मिनिमम, कितने परसेंट चाहिए आपको? 55% मैक्स चाहिए, जो आई थिंक मैक्सिमम के पास ऑलरेडी होगा ही 55%. So if you are from a general category, 55% general के लिए 55% is required in your master's degree, and the relaxation rule is also there. So the relaxation rule is that it is also there. Let's talk about the relaxation rule. So now there is one important benefit mentioned in the notification. It is that the SC ST EBC BC or non creamy layer जिसको हम कहते हैं, candidates of the Bihar domicile and persons with this disabilities, PWD, will get a 5% relaxation in marks in the master's degree. तो आप उनको 5% relaxation मिलेगा marks में. So instead of 55%, they may be eligible with 50% marks depending on the rules. Now, what does this mean in simple language? It is that general category 55%, reserved category relaxation is available, but remember that relaxation rules apply only as per the government norms. So you must have valid certificates for the proof. आप बस ऐसे ही ये नहीं कर सकते, you must have that proof with you. So now the subject 2 is the requirement. Okay, now let's talk about the requirement. So मैंने अपना draft यहाँ open रखा है ताकि मैं कोई भी point miss ना करूँ. So another very important point, that your master's degree must be in the relevant subject area, and that means English में, मतलब जिस भी subject में आपने masters किया है उसी subject में आप apply करें. You cannot apply outside your subject area. Basically, this is what it means. And then comes to the most important condition, the net, set and the PhD. इस पर प्लीज फोकस कीजिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सो द मोस्ट critical eligibility condition, I would say, to apply you must have one of the following. Option 1 is the net, so UGC net or set qualification is needed. Option 2 is set, which is state eligibility test. Option 3 is the PhD degree. So a PhD can also make you eligible, but only if it is done from a recognized university, it follows the UGC regulations basically, and it includes the proper evaluation. Like आपने वाइवा जो दिया है वो एक्सटर्नल कमिटीज़ के सामने वो प्रॉपर इवैल्यूएशन होना चाहिए. सो इट मीट्स ऑल द रिक्वायर्ड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स. ठीक है, तो अगेन एक सिंपली मैं इसको एक तरीके से समझाऊं कि नो नेट, नो सेट, नो वैलिड पीएचडी इक्वल टू नॉट एलिजिबल. ना नेट है, ना सेट है, ना पीएचडी है, तो आप एलिजिबल नहीं है. सो एनी वन ऑफ देम, अगर कि कुछ भी एक है तो भी आप एलिजिबल हैं. अगर आपके पास नेट है तो आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास पीएचडी है तो है, सेट है तो भी है. ठीक है, लेकिन अगर ये तीनों में से कुछ नहीं है, सिर्फ मास्टर्स डिग्री पर आई थिंक आप एलिजिबल नहीं हैं, जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस पर.
Key insights for the students. This is really very important for the aspirants. So NET is still the most common eligibility route, as we all know that, and the PhD is not automatically enough. So you must follow all the that UGC rules. So subject matching mandatory here. Why the selection section is really important? It is because the many candidates make mistake here. So they prepare for exam, but बाद में realize करते हैं their subject is not matching. Their PhD does not meet the UGC rule. जैसे कि मैंने अगर मास कम्युनिकेशन में दिया और मैं किसी और सब्जेक्ट में अप्लाई कर दूं, अगर मेरे सब्जेक्ट का लिस्टिंग नहीं है तो इट विल नॉट वर्क. अब आते हैं हम एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट क्या है इस एग्ज़ाम को फिल करने के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट बिकॉज मेनी स्टूडेंट आस्क दैट am I eligible for based on my age or not. So let's understand it very clearly. Minimum age की बात करें तो minimum age is 21 years. Okay, so you must be at least 21 years old to apply for this position in Bihar universities. And the maximum age limit is, guess कीजिए कितना हो सकता है? It is 43 years. So this age is calculated as on 1st August of the advertisement year. ठीक है? 43 years, 1st August of this advertisement. So if the advertisement comes in 2026, your age will be counted as of 1st August 2026. तो let me just make it more simple. आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो below 21 years not eligible, above 43 years not eligible. Okay, so between 21 to 43 years eligible subject to qualify. अब भाई बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि ये सब तो बातें हो गई. अब आते हैं मेन मुद्दे के बारे में. तो आपका सिलेक्शन होगा कैसे? क्या-क्या स्टेप्स हैं जो इस सिलेक्शन में इंक्लूड किए जाएँगे? So let's talk about that. How will the final selection happen? And because the eligibility alone is not enough. सिर्फ eligible होना और आपने सब टक 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 सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, ये इनफ नहीं है. सो इन एलिजिबिलिटी आपके परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करती है. सो द फाइनल सिलेक्शन मेथड इज इट सेज दैट द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द टू थिंग्स, रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू. सोचिए आप हर बार जब इंटरव्यूज़ के लिए जाते होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो वहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है. जिन्होंने नेट निकाला हुआ है उनके लिए तो रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाते हैं. पर यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन है और ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा रिटन एग्जामिनेशन. और वो भी सब्जेक्टिव इन नेचर है, यानी आपको लिखना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव वाइज आंसर्स नहीं है कि टिक करके आइए जैसे हम नेट में करते हैं. आपको आपकी बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होनी चाहिए उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए. सो देयर इज़ नो शॉर्टकट. सिलेक्शन इज़ फुल्ली मेरिट बेस्ड. ठीक है. और फर्स्ट इन द रिटन एग्जामिनेशन टोटल मार्क्स जो हम बोल सकते हैं तो टोटल मार्क्स इज 175 मार्क्स हैं एंड द ड्यूरेशन इज मेंशन एज 3 आवर्स. तो 175 मार्क्स है, 3 आवर्स है. सो दिस इज़ अ प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. पूरे तरीके से डिटेल तरीके से ये एग्जामिनेशन होने वाला है. एंड सिंपली इसको हम ये कह सकते हैं दैट रिटन एग्जाम कैरीज द हाईएस्ट वेटेज. सो इट विल डिसाइड योर रैंकिंग. आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट होगी. सो प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम इज़ रियली इंपॉर्टेंट. बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी आपको. अब इंटरव्यू स्टेज के लिए आपको टोटल मार्क्स जो है इंटरव्यूज़ के लिए चाहिए 25 मार्क्स. ठीक है, 25 मार्क्स चाहिए इंटरव्यू के लिए. बट दिस 25 मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बेसिकली. 2 पार्ट्स में है. पहला टीचिंग स्किल्स. आपको टीचिंग स्किल्स का एक डेमो देना पड़ेगा सबके सामने. जो कमेटी होंगे वहाँ पर एक डेमो होगा जिसके लिए 13 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 25. मतलब डिवाइड किया गया है. तो दैट इज़ फॉर 13 मार्क्स. सो इन दिस पार्ट यू हैव टू शो द टीचिंग एबिलिटी. कोई भी एक टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन होगा दैट विल बी रिकॉर्डेड. द इंटरव्यू बोर्ड विल चेक हाउ you explain a topic. So this test your classroom skills basically कि आप students को कैसे पढ़ाएंगे when it comes to teaching. Then the personal interaction is of 12 marks. तो 12 marks का personal interaction है, 13 marks का टीचिंग स्किल्स है. तो टोटल 25 मार्क्स होंगे इंटरव्यू के. सो दिस पार्ट इज बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, योर सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग, आप योर इंटरेक्शन विद द इंटरव्यूज पैनल. सो कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, क्लैरिटी ऑफ योर सब्जेक्ट, यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी. एंड सो फिर से समझते हैं
175 मार्क्स, 175 मार्क्स इन टोटल आपके रिटन एग्जाम होंगे, 25 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, एंड उसको भी सो टोटल कह सकते हैं हम 200 मार्क्स का सिलेक्शन है यहाँ पर, 200 मार्क्स के लिए आपको तैयारी करनी है। सो द नोटिफिकेशन ऑल्सो सेज दैट द एग्जाम विल बी सब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने बताया, एंड द सिलेबस विल बी काइंड ऑफ अ सिमिलर टू नेट। नेट का जो सिलेबस है, हमारे पास जो 10 यूनिट्स हैं, हमें उस हिसाब से ही वो 10 यूनिट को अच्छे से तैयारी करके जानी है। सो योर नेट प्रिपरेशन विल ऑल्सो हेल्प इन दिस एग्जाम। अपने जिन्होंने नेट दिया हुआ है सब कुछ, तो उनके सब कुछ इंटैक्ट होगा उनके दिमाग में। सो यू राइट 3 आवर का एग्जाम, मेजर वेटेज उसमें है, देन फेस एन इंटरव्यू, उसमें माइनर वेटेज है, एंड द फाइनल मेरिट इज बेस्ड ऑन बोथ द कंबाइंड मार्क्स, यू कैन से दैट। सो परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जाम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यही है कि द बिग चेंज इज कि पहले सिलेक्शन वाज ओनली अबाउट द इंटरव्यू बेस, बट नाउ इट इज़ अबाउट रिटन एग्जामिनेशन। इस हिसाब से ट्रांसपेरेंसी भी बहुत इंक्रीज हो गई, मेरिट बिकम मोर ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, और द सीरियस कैंडिडेट्स कैन गेट द बेनिफिट। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर। सो ये 15 पेज ड्राफ्ट में भी बहुत और भी चीज़ें हैं, स्पेशली कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट के भी अलग कुछ उसमें प्रोविजंस दिए हुए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो में इन सबको एक बार में सर्व करना ईजी होगा, और आपको भी समझाना मुझे डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैं उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी कि कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस से रिलेटेड उन नोटिफिकेशंस में क्या क्या इंक्लूडेड है। पर फिलहाल तो ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सीरियसली इस एग्ज़ाम के लिए तैयार होना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो नेट के रिज़ल्ट का वेट मत कीजिए। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर दिस इंटरव्यू और एग्ज़ामिनेशन के लिए। कभी भी ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, शायद ये भी कहा जा रहा है दैट 5 जुलाई को ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा वैकेंसी की, जो प्रोसेस होते हैं। ये तो अभी ड्राफ्ट है, काइंड ऑफ एक नोटिफिकेशन आया है, एक रूल बुक आया है कि क्या किस किस रूल्स के तहत एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे, but the final this notification for the recruitment will definitely going to come in next 1 or 2 days. So please start preparing for it. ऑल्सो अगर आप इस बीच कोशिश करें कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर एनी रिसर्च पेपर, एक अच्छे जर्नल के लिए जैसे स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में अगर आपने अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश कराए हैं, तो उसको काफ़ी वेटेज मिलता है ऐसे रिसर्च पेपर्स को, और आपको एज मिलता है बाकी लोगों से। सो यू नो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ नेट इज़ द ओनली थिंग, कि अगर आपने निकाल लिया तो आपने गंगा नहा लिया, बट नहीं भाई, बहुत सारे और यहाँ पे कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स हैं जिन्हें हमें क्रॉस करना है, और अगर हमने उसको अच्छे से क्रॉस कर लिया है तो फिर स्टेप बाय स्टेप हम यूं ही आगे बढ़ते बढ़ते। तो इसीलिए मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा ना, नेट इज़ जस्ट काइंड ऑफ अ एंट्री टिकट। एंट्री टिकट आपको मिल गई है, आगे का रास्ता तो आपको खुद ही तय करना है। तो आपको मेहनत खुद खूब करनी है, रिसर्च पे बहुत ध्यान देना है, और अच्छे जर्नल्स में, बार बार मैं बोल रही हूँ, स्कोपस जैसे जर्नल्स में, उनसे रिलेटेड इंडेक्सिंग जर्नल्स में आपको अपने पीयर रिव्यूड जर्नल्स को पब्लिश कराना है, ताकि आपको और क्रेडिबिलिटी मिलेगी, आपको क्रेडेंशियल्स मिलेगा, और आपको एज मिलेगा बाकी कॉम्पिटिटर से। सो स्टे ट्यून विथ मी। आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट मी। और ऑल्सो आई ऑलवेज से दैट इतनी मेहनत करती हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।